من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمین یا رب العالمین. آج ہم عربی گرامر کے ایک بہت اہم موضوع یعنی ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. آسان لفظ میں جو لفظ کسی اسم یعنی ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ہی اسم یا نام کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہ پڑے. مثلا فاطمہ مدرسے گئی، اس نے سبق یاد کیا. یہاں جو اس لگایا گیا ہے وہ فاطمہ کی جگہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور ضمیر کیا ہے؟ واحد ہے، سنگولر ہے. اس کا پلورل کیا آتا ہے؟ ضمائر یا مضمرات بھی کہتے ہیں یا ضمیریں بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی انگلش ڈیفینیشن دیکھیے. A pronoun is a word used in place of a noun. It helps us avoid repeating the same noun again and again. یعنی ہمیں بار بار اس نیم کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، اس لیے ہم ضمیر کا یوز کرتے ہیں. اب آپ اپنے بک کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے. ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اسم ظاہر جو اسم آپ کو نظر آئے، ظاہر ہو، دکھے، تاکہ اسم ظاہر کی تکرار نہ ہو. جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے، زید عالم وہو صالح. زید عالم ہے اور وہ نیک ہے. تو اس جملے میں زید کیا ہے؟ اسم ظاہر. اس جملے میں زید اسم ظاہر کی جگہ جو ہوا استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو اس کو آپ کو ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ لا الہ الا ہوا. تو اس آیت میں لفظ ہوا جو اللہ کے بدلے میں استعمال ہوا ہے وہ ضمیر ہے. اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، دو کائنڈس ہیں. فرسٹ ون ہے منفصل، سیکنڈ ہے متصل. اب منفصل میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں دو صوفے ہیں اور الگ الگ رکھے ہوئے ہیں. منفصل کا مطلب جدا، الگ الگ، یعنی ڈیٹیچ. چالو بھی ہو گئی ہے، جلدی آؤ. پلیز میوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو منفصل کا مطلب الگ الگ، فاصلے سے اسے آپ لوگ یاد رکھیے گا. اب دیکھیے ضمیر منفصل کیا ہے؟ وہ ضمیر جو نہ فعل سے ملی ہو، نہ اسم سے اور نہ حرف سے، بلکہ الگ استعمال ہوتی ہے. نہ ہی یہ جو منفصل ضمیر ہے نہ ہی یہ فعل سے ملی ہوتی ہے، نہ ہی اسم سے اور نہ ہی حرف سے. جیسے اگزامپل دیکھیے، ہوا اللہ. تو یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ الگ آ رہی ہے، فاصلے سے، ٹچ نہیں ہے. اس کے بعد یہ اسم کا اگزامپل ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھیے، ایاک نعبد، یہ فعل کا ہے. تو یا کا ضمیر ہے اور الگ آ رہی ہے. اس کے بعد پھر ماہیا حرف کے ساتھ، تو یہ بھی الگ آ رہی ہے، کہیں بھی ٹچ نہیں ہے، اسی لیے اسے کیا کہا گیا ہے؟ منفصل، یعنی فاصلے سے الگ. آپ نیکسٹ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ متصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، اٹیچ. اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو
اسम फेल या हर्फ के साथ इस्तेमाल होती है या फेल में पोशीदा होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऊपर क्या बताया आपको, वो जमीर जो इस्म फेल या हर्फ के साथ इस्तेमाल होती है और या फेल में पोशीदा होती है, मतलब हिडन होती है, छुपी हुई होती है। तो क्या क्या यूज बताया आपको, इस्म के साथ, फेल के साथ, हर्फ के साथ या फेल में पोशीदा हो। अब देखिए, जमीर इस्म के साथ, रब क्या है, इस्म है, और हु जमीर है, रब हु, उसका रब। दूसरा एग्जाम्पल में आपको क्या बता रहे हैं, जमीर फेल के साथ, जैसे कतब तहु, आपने उसको लिखा। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, इस मिसाल में हु जमीर कतबता फेल के साथ है। ये कतबता फेल है और हु जमीर है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, फेल में पोशीदा जमीर, जैसे कतबा, उसने लिखा। इस मिसाल में हुआ जमीर कतबा फेल में पोशीदा है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं जमीर हर्फ के साथ, जैसे लहू मीन्स उसके लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाया जमीर मुत्तसिल कैसे आई है। रब्बुहु में हु जमीर जुड़ी हुई आ रही है, मुत्तसिल। उसके बाद फेल के साथ भी देखिए यहाँ पे भी जुड़ी हुई आ रही है, कतबतहु। उसके बाद कतबा में हुआ जमीर पोशीदा है, वो भी मुत्तसिल है। उसके बाद में हर्फ के साथ आपको दिखाया। तो ये जो मुत्तसिल है वो चारों एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाए गए जुड़े हुए। अब आपने जितने भी सेगे लर्न किए हैं, 14 जमायर लर्न किए हैं और 14 ही सेगे हैं। तो आप गर्दान पढ़ती हैं, नसरा नसरा, तो नसरा में कौन सी जमीर, हुआ। नसरा कहा तो हुमा हो गई। नसो नसरा नसरा नसरू, तो उसमें कौन सी जमीर हो गई, हुम जमीर। इसी तरीके से जितने भी सेगे हैं सब में एक एक जमीर आपकी पोशीदा है। ठीक है, इंशाल्लाह अभी लगा के लास्ट में प्रैक्टिस कराते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जमीर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जमीर मुनफसिल और जमीर मुत्तसिल। उसके बाद जमीर मुनफसिल को दो पार्ट में किया गया है, मरफू मुनफसिल और मंसूब मुनफसिल। और जमीर मुत्तसिल को जो जुड़ी हुई आती हैं, अटैच आती हैं, उनको तीन पार्ट में, मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर, यानी ये मजरूर भी होती हैं। और जो जमीर मुनफसिल है वो मजरूर नहीं होती है। नीचे आपको बता रहे हैं मजरूर मुनफसिल की कोई जमीर नहीं होती। तो यहाँ आपने देखा टोटल आप कितनी जमीरें पढ़ने वाले हैं, 5। जमीरें 5 हैं, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल। और नीचे आपको बताया गया मजरूर मुनफसिल की कोई जमीर नहीं है। तो जब भी आप नेम बताएंगी जमायर के, तो आप मजरूर मुनफसिल की कोई जमीर नहीं है तो उसे नहीं बताना है आपको। ये आपका यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट क्या आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। कल आपको बताया गया था कि जमीर किसे कहते हैं, इसकी मिसाल लिखिए। तो जमीर किसे किसे कहते हैं, वो लफ्ज जो किसी इस्म जाहिर की जगह इस्तेमाल होता है ताकि इसमें जाहिर की तकरार ना हो, रिपीटेशन ना हो, उसे इस्म कहते हैं। अब इसकी मिसाल आपको लिखना है, तो इसकी मिसाल आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, या ज़ैदुन आलिमुन व हुवा सालिहुन, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीर की कितनी किस्में हैं, हर एक का नाम तहरीर कीजिए। तो जमीर की दो किस्में हैं, मुनफसिल और मुत्तसिल, और उसका आप नाम भी लिख दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीर मुत्तसिल किसे कहते हैं। तो मुत्तसिल का माना होता है
जुड़ा हुआ। वो ज़मीर है जो इसम फेल या हर्फ के साथ इस्तेमाल होती है या फेल में पोशीदा होती है, हिडन होती है। ये मुत्तसिल हो गई। इसकी एक मिसाल लिखना है तो आप रब्बुहू लिख दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है ज़मीर मुत्तसिल, इस्म फेल और हर्फ के साथ एक एक मिसाल दीजिए। तो आपका दिया हुआ है ना, इस्म के साथ रब्बू हो गया, फेल के साथ कतबतहू हो गया, उसके बाद कतबा फेल में, कतबता फेल के साथ हो गया, और कतबा में फेल में पोशीदा हो गई, हर्फ के साथ लहू लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका आ रहा है जमीर मुनफसिल किसे कहते हैं। तो मुनफसिल का माना होता है अलग अलग, जुदा जुदा। तो वो जमीर जो ना फेल से मिली हो और ना इस्म से और ना हर्फ से, बल्कि अलग इस्तेमाल होती है, उसे जमीर मुनफसिल कहते हैं। इसकी तीन मिसालें लिखिए। तो आप तीन मिसालें अभी आपने पढ़ा ना, इस्म के साथ हुआ अल्लाहु, फेल के साथ इय्याका नअबुदु और माहिया। तो वो आप लिख दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सब तो आपका कल हो गया था, वो रिवीजन हुआ। अब कौन सा आ रहा है सबसे पहले, आपकी फर्स्ट वन आ रही है मरफू मुनफसिल। तो अब ये क्या है, मरफू मुनफसिल वो जमीर जो मुब्तदा बनती है और इस्म फेल और हर्फ से अलग होती है। ये जो आपकी मरफू मुनफसिल जमीर है, जो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु पढ़ा है आपने। तो ये क्या है, जमीर मुनफसिल वो जमीर जो मुब्तदा बनती है और इस्म फेल और हर्फ से अलग होती है। अब यहाँ पे देखिए, हुआ मुअल्लिमुन वो उस्ताद है। इसमें हुआ क्या है, मुब्तदा है, और उसके बारे में उसकी खबर दी जा रही है कि वो क्या है, उस्ताद है, टीचर है। तो नीचे आपको बता रहे हैं इस मिसाल में हुआ जमीर मुब्तदा है और वो अलग है। अभी मुब्तदा, खबर, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है कि आप मुब्तदा का नाम सुन के बोलिए ये क्या होता है। तो अभी आपको पढ़ाया जाएगा ये सब। बस अभी आप क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, चीजों को इकट्ठा करके रख रहे हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया पढ़ने के लिए। तो हुआ का एग्जाम्पल क्या है, देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद। हुआ का माना क्या होता है, वो या इस मुजक्कर के लिए आता है, मेल के लिए है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका हुमा। हुआ मतलब वो, हुमा मतलब वो दो। तो यहाँ पे भी आपको हुमा का कुरान से सानियत नईनी इज हुमा फिल गार। तो ये हुमा क्या है, आपकी जमीर है। थर्ड वन आप देखिए, हुम मीन्स वो सब, उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो ये हुम क्या है, ये भी जमीर है। मिला के लिखने के लिए इसको क्या कर दिया गया, पेश दे दिया गया, हुमुल मुफलिहून हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल आ रहा है हिया का, यानी वो मुअन्नस का सिगा आ रहा है। तो हिया असा, ये मेरी लाठी है, हिया असाया, ये मेरी लाठी है। उसके बाद हुमा का एग्जाम्पल कुरान करीम में नहीं है मुअन्नस का, हुन्ना का है। तो हुन्ना का देखिए, हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल है। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या आ रहा है, अंता आ रहा है। अंता क्या है, तू या आप। तू भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं या तुम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, या आदम उस्कुन आता वजौजुकल जन्नता। तो यहाँ पे अंता आ रहा है, ए आदम रहिए आप और आपकी बीवी जन्नत में, आदम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है। फिर अंतुमा का एग्जाम्पल देखिए, आप दोनों। तो अंतुमा व मनित तबअकुम, देखिए, अंतुमा व मनित तबअकुमल गालिबून, आप दोनों और जो आप दोनों के पैरोकार हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल था, अंतुमा का था।
अब नेक्स्ट देखिए तुम, तो यहाँ पे भी तुम का एग्जाम्पल आ रहा है, तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। उसके बाद अंती का नहीं है, यानी मुअन्नस का नहीं है, मुअन्नस हाजिर का, वाहिद मुअन्नस हाजिर का। अंतुमा का भी नहीं है, अंतुन्ना का भी नहीं है कुरान करीम में। अना का आ रहा है और नहनु का आ रहा है। तो ये आपको दिखाए गए एग्जाम्पल सब कुरान करीम में, जो आपने जमायर लर्न किए हैं तो वो उसके एग्जाम्पल आपको दिखाए गए। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन एंड आंसर आ रहा है कि ज़मीर मरफू मुनफसिल की तारीफ और इसकी 3 मिसालें लिखिए। तो इसकी क्या तारीफ है, अभी आपने पढ़ा, वो ज़मीर है जो क्या होती है, मुबतदा बनती है और इस्म फेल और हर्फ से अलग आती है। तो मुनफसिल फासले से तो फौरन आपको समझ में आ गया कि ये ना इस्म से मिली होती है, ना फेल से मिली होती है, ना हर्फ से मिली होती है। तो ये बनती क्या है, मुब्तदा बनती है। इतना आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीर मरफू मुनफसिल की मुकम्मल गर्दान लिखिए। तो ये आपको लर्न ही है, हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना। तो इसकी गर्दान आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है मुंदरजा झेल आयात में ज़मीर मरफू मुनफसिल की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे आपको करना है कुल हुवल्लाहु अहद। तो इसमें आपको निशान लगाना है कि कौन सी ज़मीर मुनफसिल है। तो इसमें कौन सी ज़मीर मुनफसिल है बताइए। हुआ हुआ। हुआ हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका आ रहा है इसमें कौन सी ज़मीर मुनफसिल है, नेक्स्ट आयत में हुमा। 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 इसमें कौन सी है, उलाइका में हुम। हुम, उमल। हुम। ठीक है। इसमें कौन सी ज़मीर है, या। दिया। या। दिया। वेरी गुड। तो ये आप अपना कर ही लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मुंदरजा झेल अल्फाज पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो आपको इसको भी लगाना है। हुआ मतलब क्या होता है, हो। नानू मीन्स क्या है, अंता मीन्स क्या है, अंतुमा मीन्स क्या है, अंतु, ठीक है, अंतुम मीन्स क्या है, ये आप अपने से करिएगा। आगे आ रहा है मुंदरजा झेल अल्फाज को सही माने से जोड़िए। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है हुम। तो हुम मीन्स क्या होगा, वो सब मुजक्कर। वो सब मुजक्कर के लिए आपका हुम आ रहा है। तो आपको जमात लर्न है तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, मरफू मुत्तसिल। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, मरफू मुफस्सिल। मुनफसिल। ठीक है, वेरी मुनफसिल। गुड माशाल्लाह। मरफू मुनफसिल पढ़ा है, यानी फासले से अलग अलग जो आती हैं, जो जुदा होती हैं, जो डिटैच होती हैं। अब क्या पढ़ रही हैं आप, मुत्तसिल, जुड़ी हुई, अटैच जमीन। अब ये देखिए क्या है, अच्छा जो मरफू मुनफसिल पढ़ा था वो क्या बनती है, मुब्तदा। मुब्तदा बनती हैं। इतना याद रखिएगा, कुछ भी याद रखिए या ना याद रखिए, इतना सिर्फ आपको याद रखना है वहां पे कि जो मरफू मुनफसिल पढ़ा है वो क्या बनती हैं, मुब्तदा मुब्तदा। बनती मुब्तदा मुब्तदा बनती हैं। है। अब मुब्तदा क्या है उसके बारे में अभी आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो बस आपको वहां पे इतना ही याद रखना है। अब आगे आ जाइए, मरफू मुत्तसिल, वो जमीर जो फाइल बनती है और फेल में पोशीदा यानी छुपी हुई होती है, अंडरस्टूड होती है, हिडन होती है। तो ये क्या बनती है, ये भी मरफू है, वो भी मरफू थी लेकिन वो मुनफसिल थी, वो मुब्तदा बन रही थी। ये क्या है, मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है। ये क्या बनती है, फाइल बनती है। फाइल बनती है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कतबा। तो कतबा का तर्जुमा आप क्या करती हैं, उसने लिखा या उस एक आदमी ने लिखा। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, इस मिसाल में हुआ जमीर है जो फाइल है और फेल कतबा में पोशीदा है। उसके नीचे आपको क्या बता रहे हैं, हर फेल में एक जमीर पोशीदा होती है, जैसा सेगा होगा वैसी ही जमीर होगी। वाहिद का सेगा है तो वाहिद की जमीर, तस्निया का है तो तस्निया की जमीर, जमा है तो जमा की जमीर। तो वही बात आपको यहाँ समझा रहे हैं कि जैसा सेगा होगा वैसी ही जमीर होगी। अब यहाँ पे देखिए मिसालें, देखिए एग्जाम्पल्स देखिए। अल्लमा, अल्लमा में कौन सी जमीर पोशीदा है, हुआ जमीर।
علم الانسان ما لم يعلم، علم دیا اس نے انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا. تو علامہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. اس کے بعد تسنیہ کا اگزامپل دیکھیے. بلغ، غین الف زبر غ، الف مدہ ہے. ٹھیک، تو اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ ہما، کیونکہ بلغ تو یہاں ہما. اب دیکھیے تھرڈ ون آپ کا کیا آ رہا ہے؟ ضربو. تو ضربو میں ہم ضمیر، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے نا، وہ سب، تو ہم بھی جمع کا ہے. آگے دیکھیے قالت، تو قالا قالا قالو قالت مؤنث کا صیغہ آ گیا، واحد مؤنث غائب کا، تو اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ ہیا ضمیر ہوگی. قالت کے بعد تسنیہ کا صیغہ کیا آئے گا؟ قالتا، تو اس میں کون سی ضمیر آ جائے گی؟ ہما. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے قلنا، تو قلنا میں ہننا ضمیر. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ واحد مذکر حاضر قلتا، تو قلتا میں کیا آ جائے گا؟ انتا ضمیر. اذهبا میں انتما ضمیر، انتا انتما. اس کے بعد وجدتم میں انتم، کنتی میں انتی. ٹھیک، اس کے بعد یا، اس میں کیا ہو جائے گا؟ انتما. اس کے بعد کنتنا میں انتنا، قلتو میں انا، نعبدو میں نحنو ضمیر. تو سارے صیغے آپ کو 14 صیغے دکھائے گئے اور 14 ضمائر بتائی گئی. چلیے نصرہ سے ہم تصریف پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ ضمائر فٹافٹ بتائیے جلدی سے. نصرہ میں کون سی ضمیر ہے؟ هو ہوا هو ہوا. نصرہ، ہما هما ہما هما نصرو، ہم هم نصرت، ہیا هي نصرتا، ہما هما نصرنا، ہننا هن نصرتا، انت أنت نصرتما، انتما أنتما نصرتم، أنتم انتم نصرتی، انتی نصرتما، انتما نصرتن، انتن نصرتو، انا نصرنا. نحنو نحنو. تو 14 ضمیر 14 صیغے ہو گئے آپ کے. جی ہر صیغے میں ایک ضمیر ہڈن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی چلیے الحمدللہ. اب اس کے کوشچن آنسر دیکھیے. کون سی ضمیر پڑھی آپ نے؟ مرفوع متصل. اب یہاں پہ کوشچن ہے ضمیر مرفوع متصل کی تعریف کیجیے اور اس کی 3 مثالیں دیجیے. تو ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو، بتائیے کیا بنتی ہے؟ ابھی بتایا تھا، یاد رکھیے گا. فعل بنتی ویری گڈ. فائل بنتی ہے ہاں، اور فعل میں پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور اس کی 3 مثالیں لکھیے. تو 3 مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی، آپ کو یہاں سے بہت ساری دی ہوئی ہے نا، کوئی بھی مثال لکھ سکتے ہیں. اور کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں تو نصرہ میں ہوا، نصرہ ہما، نصرو ہم، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ضمیر مرفوع متصل کی مکمل گردان لکھیے. تو گردان لکھ دیجیے گا آپ، ہوا، ہما، ہم. آگے آ رہا ہے مندرجہ ذیل آیات میں ضمیر مرفوع متصل بتائیے. تو یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو مرفوع متصل والی ضمیر بتانا ہے. تو بتائیے یہاں پہ کون سی ہے؟ اس آیت میں ضمیر مرفوع متصل کون سی ہے؟ بلغا بلغ میں بلغ
हुमा हुमा। हम्म, ठीक है। तो आप मरफू मुत्तसिल इतना याद रखना है कि फाइल बनती है, और यहाँ पे आपको बताना है तो आप बता देंगी बलगा में हुमा जमीर, बलगा बलगा। ठीक। तो आपको इसमें सब जमायर बताना है, तो आप बताइएगा। नेक्स्ट आपको आ रहा है मुंदरजा झेल अफ़ाल को सही जमीर से जोड़िए। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है नअबुदु। ठीक है, तो नअबुदु को कहाँ जोड़ेंगे? नहनु। नहनु नहनु। नहनु। वेरी गुड, माशाल्लाह, कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मुंदरजा झेल अल्फाज को सही माने से जोड़िए। तो आपको सही माने से, पहला क्या है? अंता। तो अंता मीन्स आप आप। आप आप। आप वेरी गुड। तो ये अंता मीन्स आप हो गया। तो आपने जमीर मरफूए मुनफसिल पढ़ा और मुत्तसिल पढ़ा। तो जो मुनफसिल थी वो क्या बन रही थी? मुब्तदा बन रही थी। जो मुत्तसिल है वो क्या बन रही है? फाइल फाइल। फाइल बन रही। बस इतनी चीज आपको लर्न रखना है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? जमीर मंसूब मुनफसिल। ठीक। अब मंसूब मुनफसिल क्या है? मुनफसिल तो फासले से आप समझ रहे हैं, वो जमीर है जो मफऊल बनती है। मफऊल क्या होता है? मंसूब होता है। मंसूब बोले तो जबर के साथ फतहा। तो वो जमीर जो मफऊल बनती है और फेल से अलग होती है। ठीक है, फेल के अंदर नहीं होती, फेल से अलग होती है। क्या है डिफरेंशिएशन? वो जमीर है जो मफऊल बनती है और फेल से अलग होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताया जा रहा है मिसाल में इयाहू। इयाहू का माना क्या है? खास कर वो, यानी मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तो यहाँ पे अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है कि फेल से अलग होती है। तो यहाँ पे कौन सा फेल है बताइए? ताबुदुन हाँ, गुजारे ताबुदूना। ठीक है, मुजारे का ताबुदूना है। तो ये क्या है? अलग है। इय्याहु अलग आई है। ये क्या है? जमीर मुनफसिल, मंस मंसूब मुनफसिल। मंसूब तो ये क्या है? फेल से अलग आती है। वो जमीर है जो मफूल बनती है और फेल से अलग होती है। ठीक है, अटैच नहीं आती है ये। अभी आपने एक जमीर पढ़ा था फेल के साथ अटैच हु वाली, लेकिन ये वाली क्या है? इस जमीर का नाम क्या है? इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा। ये क्या है? मुनफसिल है, अलग, फेल से अलग। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको बता रहे हैं। इस मिसाल में याहू जमीर मंसूब मुनफसिल है। मंसूब इसलिए है कि तअबुदूना फेल बा फाइल है और याहू मफूल है, और मफूल मंसूब होता है, और मंसूब इसलिए है कि ये फेल से अलग है। यही हाल बकिया जमायर मंसूब मुनफसिल का है। ठीक। तो इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसका नाम याद रखिए कि जमीर मंसूब मुनफसिल याहू, याहुमा, याहू। बाकी अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आई कोई मैटर नहीं, क्योंकि अभी इसका आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस इस जमीर को लर्न करना है। याहू, याहुमा, याहुम, याहा, याहुमा, याहुन्ना। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, याहू पढ़ा, फर्स्ट पहला सिगा। दूसरा क्या है? याहुमा, खास कर वो दोनों। थर्ड क्या है? याहुम। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कुरान से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नहनु नरजुकुकुम व इय्याहुम। तो ये याहुम का हो गया। उसके बाद फिर क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इसका एग्जाम्पल कुरान में नहीं है, या हुमा भी नहीं है, या हुन्ना भी नहीं है, या का है। ठीक है, तो या का नाबुदू आप पढ़ती हैं डेली सूरतुल फातिहा में। और फिर क्या है? या कुमा, इसका भी एग्जाम्पल कुरान करीम में नहीं है। या कुम का है नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम। उसके बाद इया की है, इया कुमा है, इया कुन्ना, इसका भी नहीं है। इया या का है इया या फरहबून, इसका एग्जाम्पल है कुरान में। और इया ना,
ایانا کا بھی ہے، یہاں آپ کو دیا ہوا ہے قرآن کریم میں. تو یہ ضمیر آپ کو صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ یہ جو یاہو والی ضمیر ہے اس کا کیا نیم ہے بتائیے. منصوب. ہوں، منصوب منصوب ہے اور کیا ہے الگ آ رہی ہے تو کیا کہیں گے اسے منصوب منفصل. منفصل. ہاں، جب جو ضمیر الگ دکھے گی اس کو آپ کیا کہیں گے منفصل. 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 ٹھیک ہے، اور جو جڑی ہوئی دکھے گی اسے کہیں گے متصل. 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 اب اس کے کوشچن آنسر دیکھیے. کیا ضمیر منصوب منفصل کی تعریف کیجیے اور اس کی 3 مثالیں لکھیے. تو ضمیر منصوب منفصل کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو مفعول بنتی ہے. ٹھیک ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. ابھی آپ کو آگے پڑھایا جائے گا. تو یہ ضمیر کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو مفعول بنتی ہے اور فعل سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں آپ یہاں پہ قرآن سے دے سکتی ہیں جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے ضمیر منصوب منفصل کی مکمل گردان لکھیے. تو اس گردان کو آپ کو لرن کرنا ہے. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا. ٹھیک، تو اس کو آپ کو لرن کرنا ہے اور اپنے ہوم ورک گروپ میں ریکارڈنگ سینڈ کرنا ہے. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے مندرجہ ذیل آیات میں ضمیر منصوب منفصل کی نشاندہی کیجیے. تو یہاں پہ آپ بتائیے نحنو نرزقکم و ایاہم، کون سی ضمیر؟ ایاہم. کیا ہوں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ آیت میں کون سی ہے؟ ایاک نعبدو میں یا کا وہ ایاک. یا کا 2 بار 2 مرتبہ ہے. ہاں، 2 مرتبہ آئیے. ویری گڈ. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو صحیح معنی سے جوڑیے. یا کما کا معنی کیا ہوگا؟ ایاکما. خاص کر آپ دونوں. ویری گڈ، خاص کر آپ دونوں. یا کی کا کیا معنی ہوگا؟ خاص کر آپ مؤنث. خاص کر آپ مؤنث. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیے اب آ جائیے منصوب متصل. ٹھیک ہے، یہ پورا اس لیے کرا دے رہے ہیں تاکہ ایک ریکارڈنگ رہے آپ کے پاس. جب بھی آپ سنیے آپ کا ریویژن ہو جائے. ابھی ڈیلی ڈیلی آپ کو ریوائز کرایا جائے گا تو آپ کو سب آ جائے گا. اب نیکسٹ ضمیر آپ کی کیا آ رہی ہے؟ منصوب متصل. ابھی آپ نے آگے پیچھے کیا پڑھا ہے؟ 3 ضمیریں پڑھی ہیں. منفصل. ہاں، ابھی وہاں پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں منصوب منفصل. اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوب ہے اور یہ کیا ہے؟ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ وہ ضمیر جو منصوب ہوتی ہے اگر فعل کے ساتھ ہو تو مفعول بنتی ہے. یہ جو متصل منصوب متصل ضمیر ہے فعل کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہوگی تو کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی. اب example دیکھیے، جیسے جعلہ میں ہوں ضمیر ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فجعلہ من الصالحین، تو ان کو بنا دیا نیک لوگوں میں سے. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس مثال میں؟ جعلہ فعل ہے جس میں ہوا فاعل ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا ہر صیغے میں ایک ضمیر ہڈن ہوتی ہے نا. تو جعلہ فعل ہے اور ہوا ضمیر فاعل ہے جو اس کے اندر کیا ہے؟ مستتر ہے، چھپی ہوئی، ہڈن ہے. اور ہوں ضمیر مفعول ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہے، اسی لیے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. تو جو بھی ضمیر آپ کو فعل کے ساتھ اٹیچ ملے گی تو وہ کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے، اور کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی. ٹھیک ہے، پٹ کریے، کسی کی سائڈ سے آواز ہے. چلیے اب اگلا دیکھیے ہما. ہو کا ایگزامپل دیکھیے. اب آپ دیکھیے ہما. ہدیناہما، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہما ضمیر ہے. اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ ضمیر منصوب متصل. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کیا آ رہا ہے؟
ज़लमहुम। उसके बाद असर, हाँ, ये हा क्या है? जमीर है। कौन सी जमीर है? मंसूब मुत्तसिल, जुड़ी हुई आ रही है। अब रा के साथ टच करके तो नहीं लिख सकते ना, मीम के साथ टच करके लिख सकते थे तो लिख दिया गया। रा के साथ नहीं टच, इसलिए ये अलग दिख रही है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये आपकी मुनफसिल हो गई, नहीं, वो लिखने का तरीका है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? अस्किनु हुन्ना, हुमा का एग्जाम्पल कुरान में नहीं है, ठीक है, तो जो है वो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में आ तरका में का जमीर, और उसके नीचे कुमा का एग्जाम्पल, उसके नीचे कुम का, उसके नीचे की, फिर कुमा, कुन्ना, उसके बाद या और ना, सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कुरान करीम में। और जो नहीं है उनके सामने क्या, कुमा का आपका कुरान में आयत नहीं है तो कट लगा हुआ है वहां पे, वो नहीं है। तो ये जमीर कौन सी थी? मंसूब मुत्तसिल, जुड़ी हुई आ रही थी, अटैच आ रही थी। और किससे जुड़ के दिखाया गया आपको? फेल से। से। ठीक है, तो अब आपको क्या बताया जा रहा है इसमें? क्वेश्चन आंसर देखिए। जमीर मंसूब मुत्तसिल की तारीफ कीजिए और इसकी 3 मिसालें दीजिए। तो जमीर मंसूब मुत्तसिल क्या है? वो जमीर है जो, मंसूब तो ऊपर ही आपको बता दे रहा है, वो जमीर है जो मंसूब होती है, अगर फेल के साथ हो तो मफूल बनती है। तो फेल के साथ जो जुड़ी हुई आएगी वो क्या बनेगी? मफूल बनेगी। और इसकी 3 मिसालें लिखिए। तो आप मिसाल देख के कुरान की आयतों से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्या आपको बता रहे हैं? जमीर मंसूब मुत्तसिल की मुकम्मल गर्दान लिखिए। तो ये आपको लर्नी है, हो हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, तो गर्दान लिख लीजिएगा। अगली क्या बात बता रहे हैं? मुंदरजा झेल आयात में जमीर मंसूब मुत्तसिल की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे आपको कौन सी जमीर दिख रही है मंसूब मुत्तसिल फेल के साथ जुड़ी हुई? जअलहु। जालहू। हू की। जअलहू, वेरी गुड। और यहाँ कौन सा दिख रहा है? हाँ। नफ्सिही ही। हाँ, नहीं, फअसरहा। हाँ है, हाँ, जी। फअसरहा। फअसरहा। ठीक है, हाँ। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ रहा है मुंदरजा झेल अल्फाज के तर्जुमे पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो जअलहू, इसका क्या तर्जुमा होगा? उसने वो बनाया। उसने उसको उसने बनाया। उसको बनाया। हम्म, उसने सही है। उसको बनाया, हु, उसको बनाया। जाला का तर्जुमा क्या होगा? उसने बनाया। और उसने हु बनाया। जमीर उसको, उस ठीक है, उसने उसको बनाया। नीचे देखिए, मुंदरजा झेल अल्फाज को सही माने से जोड़िए। रज़क़ कुम, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? उसने रिस्क दिया तुम सबको। उसने रिस्क उसने दिया। रिस्क दिया। रज़क़ का तर्जुमा क्या होगा? उसने रिस्क दिया, कुम मतलब तुम सबको या आप सबको। ठीक है, तो इसका तर्जुमा कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका आ जा रहा है, स्क्रीन खराब नहीं करिए, बताइए जो आपने बनाया है। मजरूर मुत्तसिल आया। तो मजरूर मुत्तसिल वो जमीर है जिससे पहले कोई हर्फ जर या इस्म मुजाफ हो। ठीक है, वो जमीर है जिससे पहले कोई हर्फ जर या इसमें मुजाफ हो। मिसाल देखिए, हर्फ जर की मिसाल देखिए। हर्फ जर आप लोगों ने लर्न किए हैं, बा ता काफ लाम वाव। तो लाम से देखिए इसकी मिसाल देखिए, लहू। ठीक है, अब लहू में हु क्या है? जमीर है आपकी। कौन सी जमीर है? मजरूर मुत्तसिल। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि जब भी ये हर्फ जर आते हैं अपने बाद वाले इसम को क्या कर देते हैं? मजरूर कर देते हैं। ठीक, तो जमीर भी क्या है? इसम ही तो है, तो लहू हो गया। अब उसके बाद तस्निया का एग्जाम्पल देखिए, क्या है? लहू के बाद क्या आएगा? लहू माँ आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? लहूम आ जाएगा। उसके बाद लहा आ जाएगा। चलिए हर पे जर लगा के
गर्दान सुनाइए कोई आप में से। लहू, लहुमा, लहुम। पढ़िए, कोई एक पढ़िए अनम्यूट करके। लहू, लहू, लहा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन। हम्म, पूरा पढ़िए। चलिए शाजी आप पढ़िए। लहू लहुमा लहुम, हम्म। लहा लहुमा लहुन्ना, लका हम्म। लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली और लना। लना, ली और लना। ठीक है, तो ये आपकी हर्फ जर के साथ आपकी पूरी जमीरें हो गई, और ये कुरान से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप आ जाइए। इस्म के साथ देख लीजिए। ठीक है, अभी आपने किसके साथ देखा? हर्फ जर के साथ। कौन सी जमीर पढ़ रही हैं आप? जमीर मजरूर मुत्तसिल है या मुनफसिल है? मुत्तसिल। जुड़ी हुई आ रही है ना, तो मुत्तसिल है। तो आपने हर्फ जर के साथ पढ़ी। अब ऊपर क्या है? वो जमीर जिससे पहले कोई हर्फ जर हो या इस्म हो। ठीक है, तो जो इस्म होगा वो क्या होगा? मुजाफ होगा, इसीलिए लिखा हुआ है इसमें मुजाफ हो। तो अभी आपने हर्फ जर के साथ पढ़ी, अब किसके साथ पढ़ेंगी? इस्म के साथ पढ़ेंगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रब है और हु जमीर है। रब्बुहु में हु, तो हु जमीर, रब्बुहु का तर्जुमा क्या होगा? रब, रब। हाँ, उसका रब या उस एक आदमी का रब। ठीक है, रब्बुहु। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है अहदुहुमा। इसमें क्या होगा? हुमा। रब्बुहुम में हुम। रब्बुहा, इहदाहुमा, औलादहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा। तो ये इस्म के साथ हैं, और जब इस्म के साथ होंगी तो वो इस्म क्या बनेगा? मुजाफ बनेगा, और ये जमीर मुजाफ इलैहि बनेगी। अब ये मुजाफ मुजाफ इलैहि क्या है, ये आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ फोकस कहाँ करना है? जमायर को लर्न करना है और उनके नेम याद करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। कि जमायर कितनी है, जमायर को लर्न करना है। चलिए रब के साथ लगा के सुनाइए, कौन सुनाएगा? अख्तरी सुनाइए आप। चलिए अलीशा, आपने अनम्यूट किया, सुनाइए। जी मैम। हम्म। रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, हम्म। रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना, हम्म। रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, हम्म। रब्बुकी रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना, हम्म। रब्बी रब्बना। रब्बना नहीं है, रब्बुना। रब्बुना, जी रब्बुना। बहुत अच्छा, तो समझ में आ गया। और ये आप लोग हरफ जर के साथ और इस्म के साथ, और जो मुनफसिल वाली है, इयाहू, इयाहुमा, इयाहुन्ना, ये सब सारे लोग मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे। ठीक, अब आगे आइए, क्या बताया जा रहा है आपको इसमें? यहाँ पे जमीर के कुछ कायदे बताए जा रहे हैं। हु, हुमा, हुम, हुन्ना से पहले अगर कसरा या याए सकीना आ जाए। क्या बात बता रहे हैं आपको? जो हु, हुमा, हुम, हुन्ना से पहले अगर कसरा या याए साकिना आए, तो इनको ही, हिमा, हिम, हिन्ना पढ़ा जाएगा। क्या आ जाए? हु, हुमा, हुम। कितने सिगे आए? हु, हुमा, हुम और हुन्ना से पहले अगर क्या आ जाए? कसरा आ जाए या याए साकिना आ जाए, तो ये हु, हुमा, हुम क्या बन जाते हैं? ही, हिमा, हिम और हिन्ना बन जाते हैं। बाकी और कोई सूरत नहीं होगी। अभी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको बताया गया था कि हर्फ जर आएगा तो अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देगा ना, लेकिन आपने क्या पढ़ा? लहू, लहुमा, लही नहीं पढ़ा ना, कि उसको कसरा दे दे, हो जमीर को ही कर दे, नहीं, क्योंकि जमायर मबनी होती हैं। अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा मबनियात की किस्म में कि ये अपनी वैसे ही रहती हैं। तो ये जो इनकी चेंजिंग यहाँ आपको बताई जा रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। हु, हुमा, हुम, हुन्ना से पहले अगर क्या आ जाए? कसरा आ जाए या याए साकिन आ जाए,
تو ان کی پوزیشن چینج ہوگی، ہی ہما ہم ہننا بن جائے گا. جیسے یہاں پہ دیکھیے ایک ایگزامپل، ہو کے بعد کیسے ہی ہوا ہے، تو رب بھی ہی، تو یہ رب بھی یہ رب ہو سے رب بھی ہی کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہی ضمیر سے پہلے کیا آ رہا ہے، وہاں پہ کسرہ آ رہا ہے، اس لیے یہ ہوا ہے رب بھی ہی. ٹھیک. ہما میں دیکھیے کیا ہے، کیسے یہ ہما بن گیا، با کے نیچے کیا آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے. تو اگر کسرہ آ جائے یا یا ساکینہ آ جائے تو اس سائڈ، اس کے بعد پھر یہاں پہ ہننا کیسے ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے. اب ادھر اگزامپل دیکھیے تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں نا، ایک کسرہ بتایا گیا ہے، ایک یا ساکینہ بنایا گیا ہے. تو ادھر آپ نے کسرہ کی اگزامپل دیکھیے، ادھر دیکھیے یا ساکینہ علیہ. تو علیہ ہی کیوں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے یا ساکینہ آ رہا ہے. علیہما علیہم علیہن، کیوں یہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے. تو یہ دو سچویشن ایسی ہیں کہ جب اس سے پہلے کیا آ جائے، ضمیر سے پہلے، اور کون سی ضمیر، ہو ہما ہم ہننا سے پہلے اگر کسرہ آ جائے یا یا ساکینہ آ جائے تو یہ چینج ہوں گے. اور ادروائز یہ کوئی اسم آ رہا ہے، اس کے بعد آ رہی ہیں، کوئی آپ کا حرف جر آ رہا ہے، تو یہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کریں گے. اس کو آپ کو لرن کرنا پڑے گا ایز اٹ از. ٹھیک ہے، کہ ہو ہما ہم ہننا سے پہلے اگر کسرہ یا یا ساکینہ آ جائے تو یہ ہی ہما ہم ہننا بن جائیں گے. اس بات کو سمجھا آپ لوگوں نے، سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی کوشچن ہے تو کریے. چلیے اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے، ضمیر مجرور متصل کی تعریف کیجیے. تو آپ نے جو ابھی پڑھا ہے، ضمیر مجرور متصل کیا ہے، وہ ضمیر ہے جس سے پہلے کوئی حرف جر یا اسم مضاف ہو، ٹھیک، وہ مجرور متصل ہے. اس کے بعد ضمیر مجرور متصل اسم اور حرف کے ساتھ مکمل گردان لکھے. تو آپ سے ہم نے کہا ہے نا کہ ایک اسم کے ساتھ، جیسے لہو لہما لہم سے کریے، ایک ربہ ربہما، یا آپ کو جو بھی اسم سوٹ کرے اس سے بھی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کو کہا جا رہا ہے ضمیر مجرور متصل کی نشاندہی کیجیے. تو اس آیت میں آپ کو مجرور متصل ضمیر تلاش کرنا ہے. تو کون سی ہے مجرور متصل ضمیر، بتائیے آپ لوگ. اولادہن ہن اولاد ہونا، ویری گڈ. اس کے بعد کیا آ رہا ہے، نیکسٹ والی آیت میں کون سی ضمیر ہوگی، انا ربہم رب بہم، بہم ربہم بہم ربہم اور ربہم بہم. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے ترجمے پر صحیح یا غلط کے نشان لگائیے. تو کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو، ربہ، اس کا رب، ربہا. تو آپ کو یہاں جو بھی ترجمے ہیں آپ اس کو کریے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کو نیچے بتایا جا رہا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو صحیح معنی سے جوڑیے. تو صحیح معنی سے جوڑ دیجیے گا. ٹھیک. چلیے یہ آپ کا ضمیر کا چیپٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کو ریویژن کرایا جائے گا، آپ سے سنا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو سب آ جائے گا. تو آپ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.